Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs of 4th week of the October month. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे क्वेश्चन है पहला, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू भारत टैक्स 2024. ये भारत टैक्स क्या है? ये आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है जो अभी 26 से लेके 29 फरवरी को होगा 2024 में. करेक्ट. वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स 2024 कब होगा? फरवरी 2024 में, 26 से 29. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अगला साल 2024 आपका एक लीप ईयर होगा. कहाँ पर होगा? लोकेशन क्या रहेगी? भारत मंडपम एंड यशोभूमि. तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. दूसरा कह रहा है द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. तो बिल्कुल बी बिल्कुल ठीक. सी कह रहा है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च द फेयर लोगो, वेबसाइट एंड अ वीडियो ऑफ भारत टैक्स 2023. तो तीनों चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगी. नेक्स्ट, इन विच स्टेट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति द 2 week long इंडो मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी कमेंस्ड एट डैश लोकेशन. तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज का नाम रहेगा. 2 week long ये एक्सरसाइज रहेगी. इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है. पूछा जा रहा है लोकेशन बताओ कहाँ पर होगी ये एक्सरसाइज. तो मेघालय में हमें ये देखने को मिलेगी ये वाली एक्सरसाइज. करेक्ट. फिर इसके अलावा याद रखेंगे जो इससे पुराना वाला एडिशन था हरिमऊ शक्ति का, वो कहाँ पर हुआ था? वो मलेशिया में हुआ था. और ये वाला एडिशन कहाँ पर हो रहा है? हरिमऊ शक्ति का मेघालय में. तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्बिंजर, जिसकी थीम थी इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक, ये याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति की थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. फिर यहीं पे याद रखेंगे हरिमऊ, ये हार्बिंजर ये है क्या? हार्बिंजर आपका एक हैकेथॉन है. करेक्ट. किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा कराई गई थी. एंड ये इसका 3rd एडिशन है या 2nd एडिशन? तो इसका ये 2nd एडिशन रहेगा हार्बिंजर हैकेथॉन का. तो करेक्ट ऑप्शन बी और सी यहाँ पर ठीक है. ए गलत है क्योंकि आरबीआई के द्वारा ये 3rd एडिशन नहीं 2nd एडिशन कराया गया है इस हार्बिंजर, जो कि एक ग्लोबल हैकेथॉन है जिसकी थीम रहेगी इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. बी और सी आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक आ जाते हैं. ठीक है. फिर हार्बिंजर की अगर बात करें तो किसके द्वारा कराया गया था? आरबीआई के द्वारा कराया गया था. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड $175 million loan for India enhancing
connectivity and resilience of the Madhya Pradesh road network. मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बेटर रोड्स बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अभी किस बैंक ने $175 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए? तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एंड जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश में उसको बेटर करने के लिए ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करा जाएगा इन द मध्य प्रदेश। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर ये लोन अप्रूव करा। नेक्स्ट, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक्सपेंड किया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल बाय अलाउिंग रिटेल इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब टू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, जो कि 2020 के टैक्सेबल रहेंगे, जो है FRSB। क्वेश्चन है कि जो सब्सक्रिप्शन है ऑफ बॉन्ड का विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश अप टू हाउ मच? अप टू 20,000 रुपीज। तो ऑप्शन 5 यहां पर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंटिटीज आर रिसेंटली एम्पेनल्ड बाय सेबी टू प्रोवाइड डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज? तो 12 एंटिटीज एम्पेनल्ड हैं आपकी सेबी के द्वारा टू प्रोवाइड दिस डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज। करेक्ट, ऑन साइट यहाँ पे डाटा एक्विजिशन के लिए, सर्च के लिए, शीजर ऑपरेशंस के लिए ये आपके फॉरेंसिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगी, कैसी कितनी कंपनीज है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैं 12। करेक्ट, और कितने साल के लिए एम्पेनल्ड रहेंगी? ये वैलिड रहेंगी फॉर 2 years। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू टेस्ट फायर अ मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम द ऑफशोर प्लेटफॉर्म? तो किस कंट्री के द्वारा ये टेस्ट किया गया और वो पहली कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड टू टेस्ट फायर अ मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन? वो है जापान। क्या रहेगी कंट्री? जापान। ठीक है, तो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन्होंने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की एक मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, और इससे जापान पहली कंट्री बन गया है वर्ल्ड में जिन्होंने ये टेस्ट किया है। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to Qatar Masters Open 2023 held in Lusail Sports Arena, Qatar, October? So if we look at the options A, B, C, which among the following are correctly mentioned here? So remember all these 3 options are correctly marked, right? A, B, C all are correct. Next, former Indian cricketer, legendary left arm spinner and Padma Shri awardee Bhishan Singh Bedi passed away in October 2023. Question asked here is, in which year did he receive Padma Shri Award for Sports? So in which year did he receive Padma Shri Award for Sports? He received this Padma Shri for Sports in 1970. Bhishan Singh Bedi, he passed away at the age of 77. He was born in 1946 in Punjab, right? And he took 1560 wickets, more than any other Indian bowler in 370 matches. Correct, and in 1970 he was honored with Padma Shri and he was honored with Arjuna Award in 1969. Next, when was UN Day observed across the globe? UN Day was observed on 24th of October across the globe this year. Correct, and this is basically the anniversary of the day on which UN Charter entered into a force in 1945. So that means we can say on 24th of October 1945, correct, we observed the first UN Day, or on this day it was the UN Charter that has entered into force. Next thing, remember, question can be asked that in 2023 which edition of UN Day was observed? So it was the 78th anniversary of the UN Day. Then there was a theme, that is the front lines of climate action. The front lines of climate action. This is the theme here. Next, when was World Polio Day observed across the globe? So World Polio Day was observed on 24th of October, right? And it is to highlight the importance of the efforts to eradicate polio. And this year in 2023, it was the 22nd edition of the World Polio Day. Next, Center informed the Supreme Court that the tenure of the National Commission for Safai Karamchari has been extended until 31st of March till 2025. I repeat, Center informed the Supreme Court that the tenure of the National Commission for Safai Karamchari has been extended till 2025.
This National Commission for Safai Karamchari, it was constituted in 1994. It is a statutory body, right? And it is established for a period of 3 years back then, and it is to ensure the rights किनके, सफाई कर्मचारी के. ठीक है, तो याद रखेंगे सफाई कर्मचारी के राइट्स के लिए ये इस्टेब्लिश करा गया था. चलिए नेक्स्ट. Who has been recently appointed as the chairperson of the Police Complaints Authority? पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के अभी जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे? पूनम ए बांबा. पूनम ए बांबा भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ द पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी. नेक्स्ट पे आते हैं. इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह. तो हम बात कर रहे हैं पहला इंडिया का नैनो डीएपी जो कि है डायमोनियम फॉस्फेट, करेक्ट, लिक्विड फॉर्मेट में. इसके लिए प्लांट सेटअप किया गया किसके द्वारा? इफको के द्वारा ये प्लांट सेटअप किया गया है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस लोकेशन पे ये सेटअप किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में इसको सेटअप किया गया, राइट. इफको के द्वारा जो ये सेटअप किया गया 300 करोड़ की लागत से इसको सेटअप किया गया है यहाँ पर, राइट. और इससे पहले एक और इफको ने प्लांट सेटअप किया था गुजरात में ही, जो कि वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट था. और ये वाला क्या है? वर्ल्ड का पहला नैनो डायमोनियम फॉस्फेट लिक्विड प्लांट रहेगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू SBI research paper titled PM Swanidhi strengthening the country's social fabric by empowering grassroots market mavericks in October %% of the beneficiaries of PM Swanidhi schemes कहाँ से हैं? नॉन जनरल कैटेगरी से. तो कितने परसेंट यहाँ पर आपके PM Swanidhi स्कीम के जो बेनिफिशियरीज रहेंगे वो नॉन जनरल कैटेगरी से आ जाते हैं? तो 75%, करेक्ट. फिर यहीं पे रखेंगे, याद रखेंगे 44 जो परसेंट बेनिफिशियरीज हैं ये आपके आ जाते हैं OBC से, एंड 22% बेनिफिशियरीज आ जाते हैं आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से. नेक्स्ट, AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन्होंने अभी कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? 20 अक्टूबर को, करेक्ट. एंड लॉन्च्ड अ न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च. तो यहाँ पे याद रखेंगे अभी रिसेंटली AIIA ने छठा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया. कब? 20 अक्टूबर को. एंड इन्होंने एक नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब लॉन्च की फॉर एडवांस रिसर्च, करेक्ट. तो छठे फाउंडेशन डे पे, तो राइट ऑप्शन आ जाता है 6. कब होता है? 20 अक्टूबर को, राइट. और यहीं पे एक न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब जो कि एडवांस रिसर्च के लिए कहाँ पर? AIIA पे सेटअप की गई. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो कि S&P के द्वारा, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के द्वारा रिलीज किया गया, करेक्ट. तो ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसमें पूछा गया कि इंडिया विल बिकम एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. कब तक? कौन से साल तक इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी? तो वो है 2030 तक. क्या GDP होगी इंडिया की? $7.3 ट्रिलियन की GDP होगी इंडिया की बाय 2030, करेक्ट. ऑल्सो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की, और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट. टॉप पर एशिया में कौन है? चाइना, ठीक है. तो ऑप्शन 5 यहाँ पर ठीक रहेगा आपका, और मार्क करके चलेंगे इसको. नेक्स्ट, इन अक्टूबर नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड incorporated a wholly owned subsidiary dash to focus on renewable energy initiatives. तो नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट की एक होली ऑन्ड सब्सिडरी. क्या नाम रहेगा उसका? उस सब्सिडरी का नाम है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. एंड इसका फोकस क्या रहेगा? रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को, नए प्रोजेक्ट को जो कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे उनको लाना और उनमें इन्वेस्ट करना. एंड यहाँ पे जो NIGEL, इसको शॉर्ट फॉर्म में NIGEL भी लिख सकते हैं, इनका जो टारगेट रहेगा वो क्या है कि 2030 तक हमें 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर जनरेट करना है. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद द नेशनल मेडल ऑफ साइंस एंड नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम जो बाइडन द प्रेजिडेंट ऑफ USA. तो अगर बात करें नेशनल मेडल ऑफ साइंस की, इनसे किनको सम्मानित किया गया? वो है सुब्रा सुरेश. एंड अशोक गडगिल को यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से.
तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बन जाता है। अगर सुब्रा सुरेश की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र से। MIT टेक्नोलॉजी से ये एसोसिएटेड है, करेक्ट, और इनको यहाँ पर अभी सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ साइंस से। अशोक गडगिल भी ये मुंबई महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और इनको यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं हर साल, करेक्ट। हर 5 साल में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, हर साल ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एंड पहली बार इस ईयर को 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया टू लॉन्च यूथ फोकस्ड फैशन रिटेल स्टोर यूस्टा। ये जो यूस्टा नाम का फैशन रिटेल स्टोर लॉन्च किया गया है, यूथ फोकस्ड रहेगा, जैसा नाम है यूस्टा, तो यूथ फोकस्ड रहेगा, रिटेल स्टोर, फैशन रिटेल स्टोर रहेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, करेक्ट, मार्क करेंगे। और कहाँ पर होगा इनका पहला स्टोर? हैदराबाद की ये सरत सिटी मॉल में इनका ये पहला मॉल रहेगा। नेक्स्ट, CCI ने सिक्योर की मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप कितने साल के लिए? तो यहाँ पर अभी CCI ने सिक्योर करी मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप कितने साल के लिए? फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए। अगर ICN ग्रुप की बात करें, ये जो CCI ने यहाँ पे सिक्योर करी है ना मेंबरशिप इन दिस ICN स्टीयरिंग ग्रुप, ये की है ड्यूरिंग द 22nd एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ICN, जो कि स्पेनिश नेशनल मार्केट्स एंड कंपटीशन के द्वारा होस्ट करी गई थी। बार्सिलोना स्पेन में होस्ट की गई थी। 18 से 20 अक्टूबर तक इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। एंड ऐसा पहली बार हुआ है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट CCI जो कि है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ ICN's एपेक्स बॉडी, और कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। नेक्स्ट, which organization has recently approved $400 million policy based loan to India to enhance the infrastructure quality and provide assured public services and efficient governance systems? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया $400 मिलियन लोन टू इंडिया? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड और अपॉइंटेड रॉबर्ट फाइको एज द प्राइम मिनिस्टर? तो स्लोवाकिया ने अभी रिसेंटली रॉबर्ट फाइको को अपॉइंट किया है एज देयर प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड दिस इज फॉर द थर्ड टाइम कि यहाँ पर रॉबर्ट फाइको को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले 2006 से लेके 2010 तक, 2012 से लेके 2018 तक, और अब फिर 2023 में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल? ये एक वर्टिकल विंड टनल है, इसके नीचे यहाँ पे फेंस है, करेक्ट। आपकी यहाँ से ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए, एक्सरसाइज प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन आर्म के स्पेशल फोर्सेस को इनको राइट, तो यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर ये आपकी वर्टिकल विंड टनल को लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी की। कहाँ पर? इनॉग्रेटेड एट द स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनके द्वारा यहाँ पर इनको लॉन्च किया गया इस फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये लोकेटेड कहाँ पर रहेगी? तो हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली अनवेल्ड विक्रम 1, जो कि एक ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल है, फ्रॉम GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन साउथ हैदराबाद तेलंगाना। तो उस कंपनी का क्या नाम है जिन्होंने विक्रम 1 एक ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया फ्रॉम GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क इन साउथ हैदराबाद तेलंगाना? वो है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये जो विक्रम 1 रॉकेट है ना, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 480 kgs ऑफ के पेलोड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, जो कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और जो ये विक्रम 1 आपका ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल है, ये याद रखेंगे, रॉकेट जो ये रहेगा विक्रम 1, इससे ये आपका ऑल कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर बहुत मजबूत होता है और बहुत लाइट होता है, करेक्ट। और जो यहाँ पर आपको याद रखेंगे 3D प्रिंटेड इंजन रहेगा इसका, 3D प्रिंटेड इंजन रहेगा। और अगर बात करूँ मैं, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर था? वो आपका बेंगलोर कर्नाटका में। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया? तो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। नेक्स्ट, इन अक्टूबर डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में केरला की
केरला स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में हमें हॉल मार्किंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे। एंड ये जो हॉल मार्किंग क्या होती है, बेसिकली गोल्ड की क्वालिटी को असेस करने के लिए, ठीक है। एंड जो गोल्ड बिजनेस है केरला में, इट इज़ मोर देन वर्थ 1 लाख करोड़। एंड जो एनुअल सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं 250 टन से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे एनुअल सेल्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसको कितने साल पूरे हो गए हैं 2023 में? तो उड़े देश के आम नागरिक इस स्कीम को टोटल 6 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था विद अ 10 ईयर विजन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, करेक्ट। एम देखा गया था 2016 में इसका, और लॉन्च कब की गई थी? पीएम मोदी के द्वारा 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। पहली कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक थी? शिमला से लेके दिल्ली तक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन डैश प्लेस। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पे अभी एक पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई, कहाँ पर? गल्फ ऑफ गिनिया में, करेक्ट। फिर यहाँ से इंडिया की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस सुमेधा, ठीक। फिर यूरोपियन यूनियन से 3 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिला हमें, इटली का, इटली की तरफ से फॉस्कारी शिप था नेम, फ्रांस का, फ्रांस की तरफ से वेंटोसा, एंड फिर आ जाता है स्पेन, स्पेन की तरफ से था टॉर्नेडो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? वो रहेगी ज़ाकपे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया टू मोबिविक्स पेमेंट गेटवे, जिसका नाम रहेगा ज़ाकपे, ठीक है। और किस लिए? ताकि ये पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ऑपरेट कर सके। चलिए नेक्स्ट, यहीं पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ना, इनको एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर शुड अचीव अ नेट वर्थ ऑफ 15 करोड़, करेक्ट, एंड अ नेट वर्थ ऑफ 25 करोड़ बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। ये बोला गया था जो एग्जिस्टिंग पीएस का था। तो अगर इन्होंने ये डाटा को अभी अचीव किया है तो वेल एंड गुड। और जो नए पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, दे शैल अचीव और दे शैल हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 15 करोड़ जब वो अपनी एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, एंड 25 करोड़ बाय द एंड ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन। जब उनको ऑथराइज किया गया उसके 3rd क्वार्टर तक उनके पास 25 करोड़ होने चाहिए। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी एक लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया, जिसका नाम रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट, राइट। एंड ये आपका लाइफ टाइम फ्री रुपे प्लेटिनम कार्ड भी यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो ये किस पे वर्क करेगा? किस गेटवे पे? तो रुपे गेटवे पे ये वर्क करेगा। नेक्स्ट, हिज रॉयल हाइनेस सुल्तान इब्राहिम इब्नी अल मरहूम सुल्तान इस्कंदर वॉज इलेक्टेड एज द 17th किंग ऑफ डैश कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मलेशिया के ये यहाँ पर 17th किंग अपॉइंट किए गए हैं, और कितने टर्म के लिए? 5 साल के लिए इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, सीसीआई ने अप्रूव किया रीबैलेंसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉस शेयर होल्डिंग बिटवीन रेनॉल्ट एंड डैश कंपनी। तो रेनॉल्ट एंड निसान मोटर्स के बीच में यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग क्रॉस शेयर होल्डिंग है उसको यहाँ पर रीबैलेंसिंग की बात की गई, और इसके लिए सीसीआई ने यहाँ पे अप्रूवल दिया। नेक्स्ट, हु को ऑथर्ड अलॉन्ग विद रघुराम राजन, जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं ऑफ आरबीआई, अलॉन्ग विद द डैश पर्सन, करेक्ट। और कौन सी बुक उन्होंने दोनों ने मिलकर भी को ऑथर करी, जो कि है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इंडिया में जो फर्दर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएंगी, क्या हमारा फ्यूचर होगा, करेक्ट, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ये बुक ऑथर करी गई, को ऑथर की गई रघुराम राजन एंड किन के द्वारा? तो रोहित लांबा एंड रघुराम राजन जी के द्वारा मिलके इस बुक को ऑथर करा गया। नेक्स्ट, डैश इन्फेंट्री डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 27th of October। तो 77th इन्फेंट्री डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 27th of October। नेक्स्ट, द IMD Indian Meteorological Department issued a cautionary notice regarding dash cyclone storm forming in the Arabian Sea। तो क्या नाम रहेगा उस साइक्लोन का जो भी अरेबियन सी में फॉर्म हो रहा है? साइक्लोन तेज, ठीक है, साइक्लोन तेज। एंड इससे हमारी मुंबई, पुणे,
महाराष्ट्र के कुछ और रीजन्स एंड जो बेसिकली कोंकण एरिया है हम कहें तो उस पर यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन तेज। एंड ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? अरेबियन सी में। नेक्स्ट, फॉर्मर डैश कैप्टन सोर्नरेन तिपोच अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये थाईलैंड के कैप्टन है, करेक्ट, और इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, राइट। थाईलैंड की वीमेंस टीम की कैप्टन है सोर्नेन तिपोच। तो राइट ऑप्शन यहां बनता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स यूज टू कैलिब्रेट एंड टेस्ट व्हीकल? वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ठीक है, IOCL याद रखेंगे, लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रेफरेंस गैसोलीन। पहले हम इसको इंपोर्ट कराते थे सारा, अब हम इसको खुद ही इंडिया में बनाएंगे, तो हमारा जो कॉस्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये इंडिया का पहला रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल प्रोड्यूस्ड है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा? IOCL के द्वारा। ठीक, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गो सेविंग अकाउंट, जो कि एक जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट रहेगा। तो गो सेविंग अकाउंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBL बैंक के द्वारा ये गो सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड देयर फर्स्ट ग्रीन फिक्स डिपॉजिट प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ अप टू 8.5%। तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आपका याद रखेंगे इंटरेस्ट रेट 8.5% तक का आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा ऑफ दिस ग्रीन फिक्स डिपॉजिट, जो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड जो फंड यहाँ से अलोकेट किए होंगे, जो गैदर किए जाएंगे, उस फंड को हम इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में आगे इन्वेस्ट करेंगे ये बैंक। नेक्स्ट, विच एस्क्रो प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली सिक्योर्ड इंडिया का पहला डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन फ्रॉम जिफ्ट सिटी इन गुजरात? करेक्ट, तो किस एस्क्रो प्लेटफॉर्म को अभी रिसेंटली इंडिया का पहला डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन मिला फ्रॉम IFSC ऑफ जिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात? तो वो है एस्क्रो पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे याद रखेंगे ये जो ऑथराइजेशन है ये अलाउ करेगा ताकि ट्रांजैक्शन को हो सके विद 14 वर्ल्ड करेंसीज के साथ इजीली, एंड जो पेमेंट है वो इजीली आगे जो बाकी बिजनेसमैन है उन तक पहुंच सके। करेक्ट। नेक्स्ट, द 3 इंडियन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नेमली अमनदीप सिंह गिल, नजीन रजरानी एंड शरद शर्मा, इनको नेम किया गया इन द लिस्ट ऑफ 39 मेंबर्स डैश हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन AI। जो 3 इंडियंस हैं ये हैं, इनको एक 39 मेंबर की हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इंटरनेशनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे यहाँ पर इनको इलेक्ट किया गया। करेक्ट, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रहेगी ना ये बॉडी, 39 मेंबर्स रहेंगे इसमें। ठीक, पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई? तो UN के द्वारा, UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स के द्वारा ये फॉर्म की गई है 39 मेंबर्स की एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करेगी। क्या क्या हमें उनको आगे बढ़ना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत डेंजरस चीज़ भी है अगर गलत हाथों में चली जाए। करेक्ट, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट, किस बॉलीवुड एक्टर ने अभी रिसेंटली नेम किया नेशनल आइकन उनको? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी किस बॉलीवुड एक्टर को नेशनल आइकन का तौर पर अपॉइंट किया है? वो है राजकुमार राव। इससे पहले याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को भी अपॉइंट किया गया था एज नेशनल आइकन, और इन दोनों को 3 साल के लिए यहाँ पर वोटर अवेयरनेस के लिए अपॉइंट किया गया है एज देयर नेशनल आइकन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 2। नेक्स्ट, which among the following persons from India has been elected as one of the vice chairman of World Steel Association? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो अभी वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे बताइए? वो है थाचत विश्वनाथ नरेंद्र, राइट। इनको अपॉइंट किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच बैंक मुनीश सरद has recently appointed as the executive director effective from 1st of November 2023? तो किस बैंक के मुनीश शरद को अभी अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? वो है एक्सिस बैंक के, याद रखेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं मुनीश शारदा, शरद नहीं मुनीश शारदा। ठीक है, और इनकी जो हर अपॉइंटमेंट फीमेल है, याद रखेंगे मुनीश शारदा, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर द नेक्स्ट 3 years। चलिए
फिर आ जाता है, हम बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज़ किया गया 2023 का, किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। एंड यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना, हर साल 5% से बढ़ जाती है, करेक्ट। और यहीं पे बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बन जाएगा बाय 2050। टॉप पर चाइना, सेकंड पर आ जाएगा यूएसए, थर्ड पर आ जाएगा इंडिया विद द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय 2050, ठीक है। और 5% से यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है हर साल। मूविंग ऑन, विच बैंक अभी रिसेंटली इन्होंने कोलैबोरेट किया वीएमआरसीएस कॉर्पोरेशन के साथ टू ऑफर डिजिटल इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज एनआरआईज के लिए, जो कि यूएसए में है। तो जो एनआरआईज यूएसए में है और वो अपने घर वापस इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं, रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस जो होती है, मतलब बाहर का पैसा इंडिया वापस आ रहा है, करेक्ट। तो वो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए किस बैंक ने भी ये वेरियस सर्विसेज लॉन्च की इन कोलैबोरेशन विद वीएमआरसीएस कॉर्पोरेशन, वो है इंडसइंड बैंक ने, ठीक है। और इनके द्वारा इंडस फास्ट रेमिट IFR को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने भी रिसेंटली महात्मा अवार्ड 2023 फॉर CSR एक्सीलेंस इन कम्युनिटी इनिशिएटिव के लिए जीत लिया है? तो वो UST रहेगी, करेक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी महात्मा अवार्ड्स, करेक्ट, फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीलेंस इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, UST को, करेक्ट, मार्क करेंगे, जो कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी है, राइट। मूविंग ऑन, तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज देयर ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। तो किस बैंक ने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जियो मार्ट के भी ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, रीबॉक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, TVS मोटर्स के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ड्रीम 11 के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओरियो कंपनी के जो बिस्किट बनाता है उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया एडिशनल शेयर्स ऑफ JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू री इंस्टेट देयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोडक्शन टू 9.9%, वो रहेगा येस बैंक, करेक्ट। इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया एडिशनल शेयर्स ऑफ JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू री इंस्टेट देयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू 9.9%। नेक्स्ट, ली कैंग फॉर्मर प्रीमियर ऑफ चाइना, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया इन अक्टूबर 2023। नेक्स्ट, एज ऑफ अक्टूबर वेदांता लिमिटेड होल्ड्स -% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो याद रखेंगे, वेदांता लिमिटेड ये कितना % स्टेक होल्ड करते हैं इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड? वो है 64.92% स्टेक होल्ड करते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट लेमूर एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड? तो छत्तीसगढ़ में ये आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, मार्क करके चलेंगे। इन द कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपका लोकेटेड रहेगा, करेक्ट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें 1973 में आया था। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 4th वीक ऑफ द अक्टूबर मंथ। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे। ये पुराने मंथ के आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, इसी मंथ के भी करंट अफेयर्स रहेंगे रिवीजन के लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड इन द 10th एडिशन ऑफ द एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट? ये फिलेंथ्रोपी लिस्ट बेसिकली क्या होती है? ये लिस्ट उन लोगों की लिस्ट होती है जो कि बहुत डोनेशन करते हैं, करेक्ट। जिनके डोनेशन से हम देखें थाउजेंड्स करोड्स में इनके डोनेशंस होते हैं, एंड इनके डोनेशन से हम देखते हैं काफ़ी लोगों को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अभी ये 10th एडिशन था, करेक्ट। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एल्डेलगिव इन दोनों के द्वारा मिलकर 10th एनुअल ये एडिशन रिलीज किया गया था एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट का, जिसमें से शिव नादर ने यहाँ पर टॉप किया है। 78 ईयर्स के हैं ये, HCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, एंड ये इंडिया के मोस्ट जनरस मैन आए फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इन्होंने 2042 करोड़ रुपए की यहाँ पे डोनेशन करी। सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं फिर अजीम प्रेम जी, करेक्ट। एंड 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी, यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंगलोर के कैंपगोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ने अभी टॉप किया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। कोई भी एयरपोर्ट पंक्चुअल जब बोला जाता है, जब जो उनका फ्लाइट का टाइम होना वो 15 मिनट के टाइम
के अंदर ही, यहाँ पर शेड्यूल टाइम के अंदर ही वो फ्लाइट और टेक ऑफ हो जाए, राइट। तो उसको हम बोलते हैं कि फ्लाइट आपके टाइम पर थी। तो इसीलिए जो मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट अभी निकल के सामने आया है वो है बेंगलोर का केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट सामने निकल के आया है। और इसके लिए जो डाटा रिलीज किया गया वो किसने किया गया? सिरम। सिरम क्या है? ये एक आपका एविएशन एनालिटिक फर्म है, इन्हीं के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि केम गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, ये वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट निकल के सामने है फॉर द लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, जो कि है जुलाई, फॉर अगस्त एंड सितंबर मंथ 2023 के लिए। यहीं पर अगर देखें, इन्होंने मेंटेन किया ऑन टाइम पैसेंजर्स पंक्चुअली एट 87.51% जुलाई में, 89.66 अगस्त में, 88.51 इन सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया, ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा। ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा इसको रिलीज किया गया और इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा के हिसाब से एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि इंडिया एशिया का, या फिर इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। टॉप पर कौन रहेगा एशिया में? चाइना, फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, राइट। और ये सरपास किसको करेंगे? हम सरपास कर देंगे जापान को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली यूएसए टॉप पर है, फिर सेकंड पे चाइना आ जाता है, राइट। और हम बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा एशिया में। ठीक है, और जो इसकी जीडीपी होगी ऑलमोस्ट $7.3 ट्रिलियन जीडीपी होगी बाय 2030। और इसी के साथ साथ इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में एक और फॉरकास्ट आया कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी नेक्स्ट ईयर वो 6.2 से 6.3% के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा 2 इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट को अभी नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया। एक है सुब्रा सुरेश और दूसरा है अशोक गडगिल। सुब्रा सुरेश की बात करें, ये MIT से बिलोंग करते हैं एंड इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। वहीं पे अगर अशोक गडगिल की बात करें, ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इनको अभी नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। दोनों नाम याद रखने हैं और दोनों मेडल के नाम, कि सुब्रा सुरेश को तो नेशनल मेडल ऑफ साइंस SSS से याद रखेंगे एंड अशोक गडगिल जी को यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। तो साइंस वाला किनको दिया गया है? वो है सुब्रा सुरेश को, क्योंकि SSS से याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल सॉलिडेरिटी डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल सॉलिडेरिटी डे? हम 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सॉलिडेरिटी डे। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, राइट। इंडिया और चाइना की वॉर 1962 में जब हुई थी, तो जब यहाँ पर पूरा देश एक साथ आ गया था, सभी फोर्सेस इंडिया की एक साथ आ गई थी टू फाइट अगेंस्ट चाइना। एंड इस डे के दौरान इस टाइम के दौरान काफ़ी सोल्जर्स ने यहाँ पे इंडिया की अपनी जान भी गंवाई, करेक्ट। तो जो हम ये सारी स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी, जो भी आपकी इंडियन फोर्सेस थी, वो सब एक साथ आ गई थी। उसको ऑनर करने के लिए हम नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं 20 अक्टूबर को, क्योंकि 20 अक्टूबर को यहाँ पे 1962 में हमें वॉर देखने को मिली थी अगेंस्ट चाइना, करेक्ट। चलिए, और ये जो वॉर थी ना 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी एंड 21 नवंबर को ये एंड हो गई थी। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो 20 अक्टूबर को जो था ना, ये 61st एनिवर्सरी 2023 में हमने 61st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है आपकी इंडिया चाइना वॉर की, मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे? 20 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि कोई भी आपकी प्रिवेंशन हो, अवेयरनेस हो, डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो ऑफ योर ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी जो बोन्स की हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, करेक्ट। तो उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए आपको डे टू डे डेली बेसिस पे आपकी चेकअप भी होता रहे, डायग्नोस भी होता रहे, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे बात की गई। ठीक है, आपकी हेल्दी बोन्स को मेंटेन करने की यहाँ पे बात की गई। और यहीं पे थीम याद रखेंगे इसके लिए, क्या है? बिल्ड बेटर बोन्स। ये क्या रहेगी आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस
डे की। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1966 में हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड ऑस्टियोपेरेसिस डे। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल शेफ्स डे। शेफ्स कौन होते हैं? जो आपका खाना बनाते हैं, राइट। तो इनके लिए ये इंटरनेशनल शेफ्स डे ऑब्जर्व किया जाता है इनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये पेट भरते हैं, राइट। एंड काफ़ी ये आपके हर होटल में आप देखेंगे बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये आपका काफ़ी ज़्यादा फूड को टेस्टी बनाते हैं ताकि जो लोग हैं वो इसको खुश होके खा सकें। एंड इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, राइट, ताकि इनको भी यहाँ पे ऑनर किया जा सके। तो 2023 में हमने 20वां इंटरनेशनल शेफ डे ऑब्जर्व किया और यहाँ पे थीम याद रखेंगे या कैंपेन याद रखेंगे, वो है ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ताकि और बेटर टेस्टी फूड आप लोगों को मिल सके। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2004 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड अब 2023 में इसका 20वां एडिशन हमने ऑब्जर्व करा है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड ड्वार्फिज्म डे। जब हाइट में आप छोटे रह जाते हैं, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है इन द आर्म्स एंड लेग्स। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए एंड लोग उनका मजाक ना उड़ाएं, उनकी हेल्प करें, बल्कि करेक्ट उनको सपोर्ट करें इस जर्नी में, इसलिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। एंड इसी को इंटरनेशनल डॉर्फिज्म अवेयरनेस डे भी एक ऑब्जर्व किया गया था, जिसको हम द लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका डे के नाम से भी जानते हैं। पहली बार इसको 2012 में ऑब्जर्व किया गया था और हर साल हम 25 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, ताकि जो हमारे हिस्ट्री है ऑफ ऑडियो विजुअल, जिस तरीके के हमारे इक्विपमेंट्स होते थे, हम उनको प्रिजर्व कर सकें, उसका आर्काइव बना सकें, ताकि उससे जो हमारे आज डेवलपमेंट हम देखने को मिल रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, करेक्ट। तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम भी है योर विंडो टू द वर्ल्ड। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्फेंट्री डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 अक्टूबर को हम इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय इंडियन आर्मी टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इन्फेंट्री, जो कि लार्जेस्ट फाइटिंग आर्म है इंडियन आर्मी का, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल 2023 में 77th इन्फेंट्री डे हमने ऑब्जर्व करा था। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये इवेंट 1947 में ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी बात करते हैं, हम जानते हैं ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि जो हिजाब को लेके वीमेंस के, तो यहाँ पर एक वीमेन का नाम याद रखेंगे, जीना मासा आमिनी। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, 22 साल की हैं ये ईरानियन वीमेन, कर्डिश ईरानियन वीमेन। इनको सितंबर 2022 में अरेस्ट करा गया था, लेकिन अरेस्ट होने के 3 दिन बाद ही इनका डेथ हो गई। तो ये काफ़ी एक शॉक की तरह गया एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें ईरान में देखने को मिले, जिसके रिलेटेड हमने देखा कि एक काफ़ी मैसिव वीमेन लेड प्रोटेस्ट हुआ ईरान में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया, वीमेन लाइफ फ्रीडम, ताकि जो ईरानियन वीमेन है मूवमेंट उसको आगे बढ़ाया जा सके। एंड हिजाब लॉ के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट हमें यहाँ देखने को मिला था, करेक्ट। तो बेसिकली हम बोलें तो जो ये इनकी डेथ हुई, इसने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोले तो आग में चिंगारी में आग लग गई थी यहाँ से, राइट। तो अब इससे क्या हुआ कि ये बेसिकली क्या दर्शाता है कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क कर रहे थे। ये जो वीमेन ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने अपने राइट्स के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, करेक्ट। अपने एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, ये अपने ऑनर के लिए डिफेंड कर रहे थे, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे ये लड़ रही थी ये वीमेन सारी, करेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभी इन जीना माशा आमिनी एंड जो वीमेन प्रोटेस्टर्स थे ईरान की, उनको यहाँ पर शाखारोव प्राइज से सम्मानित किया गया। शाखारोव प्राइज, ये शाखारोव प्राइज कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ये किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को दिया जाता है जो कि अपने ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर रहे हो, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क कर रहे हो, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे, शाखारोव प्राइज से सम्मानित किया जाता है इनको। फिर यहीं पर इनको 50,000 यूरो से भी सम्मानित किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पूछा जाए कि वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको आपके शाखारोव प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो 1988 में नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया था शाखारोव प्राइज से, क्योंकि ये भी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ वहां पर वर्क कर रहे थे।
करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे कौन, जीना माशा आमिनी, इनको यूरोप के टॉप ह्यूमन राइट प्राइज से सम्मानित किया गया। और यह भी पूछा जा सकता है कि यूरोप का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज का नाम क्या है, अवार्ड का नाम क्या है, वो है शाकारोव प्राइज। मूविंग ऑन, उड़ान स्कीम सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। आरसीएस उड़ान स्कीम ने अभी कितने साल अपने पूरे करे हैं? तो आरसीएस उड़ान स्कीम जो है इन्होंने अभी अपने 6 साल पूरे करे हैं। आरसीएस उड़ान स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में, ताकि जो कॉमन मैन है वो भी फ्लाई कर सके यूजिंग द एयरक्राफ्ट, राइट। प्लेन्स में वो ट्रैवल कर सके, जिससे उनका जो टाइम है ट्रैवल का वो कम हो सके, राइट। इवन प्राइसेस को रिड्यूस किया जा सके, कम करा जा सके, ताकि वो इजी हो सके कॉमन मैन के लिए फ्लाई करना। तो आरसीएस उड़ान स्कीम कितने साल पूरे हो गए? 6 साल पूरे हो गए। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंडर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड इसका एम क्या था? 10 साल तक इस स्कीम को यहाँ पे रन करा जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जो पहली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम के अंडर, वो 2017 में थी, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ से कहाँ तक? शिमला से दिल्ली तक थी। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहां पे आप देख सकते हैं किस लिए थी ये आरसीएस उड़ान स्कीम? टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर द कॉमन सिटीजन्स। चलिए इसी के साथ साथ एक दो क्वेश्चन और पूछा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अभी रिसेंटली आयरन स्वॉर्ड्स, ये एक ऑपरेशन का नाम है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च करा गया? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था आफ्टर हमास सरप्राइज अटैक। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज अभी 2023 की, इसको चेयर किसके द्वारा करा गया? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा चेयर की गई। अगर पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो 111वें पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इंडिया ने किस यूनियन के साथ मिलके पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? कहाँ पर? गल्फ ऑफ गिनिया में। तो उन्होंने कंडक्ट करी एक नेवल एक्सरसाइज, जो कि पहली नेवल एक्सरसाइज थी। गल्फ ऑफ गिनिया में एक्सरसाइज हुई 24 अक्टूबर को ये एक्सरसाइज हुई थी। लोकेशन हम देख ही चुके हैं, तो वो कौन है? वो है यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। इटली, यूरोपियन यूनियन से इटली, फ्रांस एंड स्पेन का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अगर हम देखें इन चारों कंट्रीज के इंडिविजुअल शिप्स जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से इंडियन नेवल शिप सुमेधा का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, इटली से फॉस्कारी, फ्रेंच से वेंटोसा एंड टॉर्नेडो फ्रॉम स्पेनिश नेवी। तो इनका यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने पड़ा। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज ऑफ गुजरात, that is Dhordo village, right? This is a village in Gujarat that is included in the United Nations World Tourism Organization's best tourism village list. I repeat, Dhordo village that is in the Kutch district of Gujarat has been recently named in India's best tourism village, right? And this is the third edition of best tourism village list that was recently released by UNWTO. That is United Nations World Tourism Organization. Correct? Then apart from this, remember, if we are talking about Madhya Pradesh Mandla village has been picked for the best tourism village upgrade program. I repeat, if we are talking about the best tourism village, it was Gujarat's Dhordo village, and if we are talking about the best tourism village upgrade program, it is the Madla village. That is the Madla village of Madhya Pradesh. Then if we talk about this village, this is known for hosting the annual Ran Utsav, that is a vibrant cultural festival showcasing the region's traditional art, music, craft, spanning almost over 5 lakh square meters. Correct? So remember the name, that is
Dhordo village in Gujarat is the best tourism village, and if we are talking about the best tourism village redevelopment, or if we are saying that best tourism village for upgrade program, it will be Madla of Madhya Pradesh. Next, remember, Udhampur military station gets the best green military station award. Direct question will be asked that which is the railway station that recently got, or which is the military station that recently got the best green military station award. It is Udhampur military station. This Udhampur military station is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir, correct, and it has bagged the best green military station award. This award was presented to this military station for the efforts and the work they did, and towards the basically for the Indian Army to strive for excellence, right? So basically all the development work they did there, for that recognition they were honored with this best green military station award. During this award ceremony, Dehradun military station of Uttarakhand was also acknowledged for securing the title of the second best. Bikaner military station of Rajasthan was honored with the best transformative station trophy, and 671 Army Aviation Squadron Reconnaissance and Observation was honored with the COAS Flight Safety Trophy for the year 22-23. So these are some awards. First is your Best Green Military Station Award. Top is your Udhampur. On second is your Dehradun Military Station. Then Best Transformative Station Award goes to Bikaner Military Station. So these are some awards that you need to remember. मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं. तो रेजिंग डे ऑफ ITBP कब ऑब्जर्व किया जाता है, जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स. तो हम 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं द राइजिंग डे ऑफ ITBP. एंड 1962 में 24 अक्टूबर 1962 में आपकी इस फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट को ही हम ऑब्जर्व करते हैं एज देयर रेजिंग डे. तो 2023 में हमने अभी 62nd एडिशन ऑफ ITBP रेजिंग डे ऑब्जर्व करा था. नेक्स्ट, डिसआर्मेंट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 से लेके 30 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट कि पीसफुल लिविंग के लिए हमें आर्म्स को डिसआर्म कर देना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए. इससे आपकी क्या है, पीस प्रमोट होता है, करेक्ट. यूएन के द्वारा ये डे ऑब्जर्व करा जाता है. एंड हम देखते हैं यूएस में कितना ज़्यादा शूटिंग होती है, बच्चे के पास गन रहती है, एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इवन स्कूल्स में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूल्स में गन ले जाते हैं एंड वहाँ पे भी फायरिंग कर देते हैं. तो इससे क्या है कि एक पीस प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब. यूएन डिसआर्मेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर तक ये ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट पर आ जाते हैं ICAI के द्वारा अभी रिसेंटली एक यूएन का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, वो है ISAR ऑनर्स. ये अवार्ड क्यों दिया गया है, पहले तो याद रखेंगे, छठा एडिशन अवार्ड दिया गया है. एंड इनको क्यों सम्मानित किया गया ICAI को, क्योंकि ये जो ISAR अवार्ड है ना, बेसिकली ये किस लिए होता है, ताकि जो आपके 2030 में हम जानते हैं हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट. तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट देने के लिए कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, कौन सी कंट्री अडॉप्ट कर रही है नहीं कर रही, क्या वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, राइट. तो एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस बनाने के लिए ICAI को यहाँ पे ऑनर किया गया ISAR ऑनर्स 2023 अवार्ड से. ISAR की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. एंड इसका छठे एडिशन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली, वो रहेगा ICAI. ये जो इनको अवार्ड प्रेजेंट किया गया ना, ये प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम. ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम अभी आबू धाबी UAE में थी 16 से 20 अक्टूबर के बीच में. एंड यहीं पर आप थीम याद रखेंगे इसकी, जो कि है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम ISAR ऑनर्स की बात करें तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. और इसका एम क्या, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्टिंग करना अबाउट द अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हम 2030 तक अडॉप्ट करना चाहते हैं. ठीक, फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट को रिसेंटली सम्मानित किया गया, या फिर दे हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द UN प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस. UN प्रमोशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किनको सम्मानित किया गया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को, वो रहेगी तमिलनाडु. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनको सम्मानित किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के बेस्ट अवार्ड से या फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल के हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन अवार्ड से, जो कि है सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड। आई रिपीट, द सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड, ये आपका हाईएस्ट प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो अभी किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को, राइट। और ये 2022 के लिए है, ठीक है। दिसंबर 2022 में इनको अनाउंस किया गया था एज द रेसिपिडेंट ऑफ द अवार्ड और अभी इनको सम्मानित किया गया। सिमिलरली 2023 के अवार्ड से कौन रेसिपिडेंट रहेंगे, वो है डाना रेमस, और इनको भी सून इस अवार्ड से सम्मानित करा जाएगा, करेक्ट। सो कमिंग बैक, सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। एंड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कहां पर है, यूएसए में। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल्ली स्टरलाइज देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन। स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी कंट्री वो पहली बन गई इन द वर्ल्ड, वो है भूटान, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन इन भूटान, करेक्ट। एंड ये स्टरलाइजेशन क्या होती है, इससे क्या होगा, प्रोसीजर होता है, इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो सभी स्ट्रीट डॉग्स को भूटान में यहाँ पे स्टरलाइज कर दिया गया है और इसीलिए ये फर्स्ट कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइज कर दिया। अभी जीता AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर ग्रास रूट ट्रेवल। तो ब्रॉन्ज अवार्ड जीता है AIFF ने, जो कि है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर की और फिर आ जाता है ब्रॉन्ज, तीनों देखते हैं। गोल्ड किसने जीता इस AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड, तो गोल्ड अवार्ड जीता है फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिल्वर अवार्ड किसने जीता, गुआम फुटबॉल एसोसिएशन ने, और ब्रॉन्ज किसने जीता है, AIFF ने, ठीक है। ये AFC के जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं, याद रखेंगे, ये 27वां एडिशन था AFC एनुअल अवार्ड का, 18 कैटेगरीज में प्रेजेंट किया गया था, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो AFC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है, वो किसको दिया गया है, सलीम अल दवसारी को, करेक्ट। ये सऊदी अरेबिया के प्लेयर हैं और इनको यहाँ पे AFC प्लेयर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में, और वीमेन कैटेगरी में कौन है, समांता कैर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की बिलोंग करती हैं और मेन कैटेगरी में कहां से बिलोंग करते हैं, सऊदी अरेबिया से। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड विद रोशनी नैयर प्राइज 2023। तो रोशनी नैयर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया और क्यों सम्मानित किया गया, देखो, सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहां पे सम्मानित किया गया विद रोशनी नैयर प्राइज। और किस लिए, फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन, फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से, करेक्ट। इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग अ फंक्शन जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे हुआ एट न्यू दिल्ली, करेक्ट। ये नैयर फाउंडेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ ब्यूरोक्रेट डॉक्टर रोशनी नैयर, जो कि एक IAS थी। इस अवार्ड के दौरान एक साइटेशन एंड एक ट्रॉफी और एक कैश प्राइज 10 लाख रुपए का दिया जाता है, करेक्ट। 2022 में इसका पहला एडिशन हुआ था और ये सेकेंड एडिशन था रोशनी नैयर अवार्ड का, जो कि सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को दिया गया फॉर द एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन, ठीक है। इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा ट्राइबल वीमेन का इन छत्तीसगढ़ यहाँ पे मैंने बेनिफिट प्रोवाइड कराया उनको, उनकी अपलिफ्टमेंट करी, करेक्ट। क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नक्सल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ से उनको बचाकर उनको जॉब्स प्रोवाइड कराना, बेटर एक लिविंग प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये रिपोर्ट आपकी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है इन इंडिया 2022। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया कि एनुअली इंडिया में 2022 में हमने 4 लाख से भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करे। फिर इसी रिपोर्ट ने बताया तमिलनाडु वो स्टेट बनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जो कि है ऑलमोस्ट 64,000, और ये 13.5% आ जाता है ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स जो 2022 में हुए इंडिया में।
सबसे पहले हम बात करें किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ टाई अप करा ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो वो है रिलायंस रिटेल। इन्होंने एसबीआई कार्ड्स के साथ टाई अप किया है ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर लॉन्च किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट बनता है ऑप्शन ए, यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। फिर यहीं पे देखेंगे ये जो कार्ड है ये दो वेरिएंट में आता है, एक तो है रिलायंस एसबीआई कार्ड और दूसरा है रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम। एंड इसको रिसाइकल्ड प्लास्टिक से यहाँ पर आपका बनाया जाएगा और इसको पावर किया जाएगा रुपे कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव द जिफ्ट आईएफएससी रजिस्ट्रेशन। तो जिफ्ट सिटीज आईएफएससी रजिस्ट्रेशन को पाने वाला वो पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है, वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है इसको इंडिया फर्स्ट लाइफ के नाम से भी जानते हैं और ये तीन बैंकों से बना है, 3-वे वेंचर है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो होल्ड करता है 65% स्टेक, फिर आ जाता है आपका कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 26% होल्ड करता है, और फिर आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि होल्ड करता है 9% इन दिस पर्टिकुलर स्टेक। ठीक है, अगर फिर बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ही, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, आरएम विशाखा। नवंबर 2009 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू व्हाट परसेंट इन 2024। तो 2024 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है वो है 2.9% की। वहीं पे 2023 की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 3% की। यहीं पे अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन 2023 में कितनी एक्सपेक्टेड है, 6.9% की, और 2024 में इन्फ्लेशन है 5.8% की। राइट, इवन बोला जाने आने वाले टाइम में हम देखेंगे देयर इज अ हाई चांस कि रिसेशन भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। तो राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पर ऑप्शन 1। आईएमएफ की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। एंड इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू स्लो टू 2.9% इन 2024 amid इकोनॉमिक slowdown. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.